हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 124 चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशियरी, अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका के बारे में। संघ की न्यायपालिका क्या है उसके बारे में आज मैं बताऊंगी, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। मैं इसकी स्थापना कैसे होती है, संघ की न्यायपालिका की स्थापना। तो चलें स्टार्ट करें। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 124 एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। Establishment and Constitution of Supreme Court. Number 1. There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India. Number 1. There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India, and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. Number 2. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts in the states as the President may deem necessary for the purpose, and shall hold office until he attains the age of 65 years. Provided that in the case of appointment of judge other than the Chief Justice of India shall always be consulted. Provided further that a judge may by writing under his hand addressed to the President resign his office. B. A judge may be removed from his office in manner provided in clause 4. 2A में क्या कहा गया है? The age of a judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide. Number 3. A person shall not be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India. Number A. Has been for at least 5 years a judge of a high court or of 2 or more such court in succession, or B. Has been for at least 10 years an advocate of high court or of 2 or more such courts in succession, or C. Is in the opinion of President a distinguished jurist. Explanation first. In this clause, High Court means a high court which exercises or which at any time before the commencement of this constitution exercised jurisdiction in any part of the territory of India. Explanation second. In computing for the purpose of this clause the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included. Number 4. A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address
by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house presented, and voting has been presented to the president in the same session for such removal or the ground of the removal on the ground of provide removal on ground of provided misbehavior or incapacity. Number 5. Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of misbehavior or incapacity of a judge under clause 4. Number 6. Every person appointed to be a judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President or some person appointed in the behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule. Number 7. No person who has held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court of before any authority within the territory of India. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे होती है। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 124 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। 124 अनुच्छेद क्या कहता है? कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन करता है। नंबर 1, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी जजों की जो संख्या बढ़ाने के लिए इसमें संसद कानून बनाएगी, उसके बाद ही जजों की संख्या भारतीय न्यायालय के लिए बढ़ाई जा सकती है। और जब तक संसद कोई विधि नहीं बनाती है संख्या बढ़ाने के लिए, जजों की संख्या बढ़ाने के लिए, तब तक बात की गई थी कि तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा 7 जज। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वे न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा, परंतु यह और कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। नंबर ख, किसी न्यायाधीश को खंड ख में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। 2 का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। नंबर 3, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए तभी आहरित होगा जब वे भारत का नागरिक है और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी आहरित होगा यानी क्वालिफाइड होगा जब वह भारत का नागरिक हो
और यानी वो भारत का नागरिक हो, नंबर का किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या खा किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। नंबर गा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि व्यवस्था हो, यानी उसको संपूर्ण कानून की जानकारी हो। विधि व्यवस्था होता है संपूर्ण संविधान की जानकारी, कानून की जानकारी। स्पष्टीकरण 1। स्पष्टीकरण 1। इस खंड में उच्च न्यायालय से वे उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है। उसकी अधिकारिता कहाँ है? राज्य क्षेत्र के। उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। स्पष्टीकरण 2। इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। नंबर 4। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा या हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है तब तक नहीं हटाया जा सकेगा। कौन? उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की बात हो रही है। नंबर 5। संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। नंबर 6। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। संविधान की शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा न्यायाधीश, यानी जो भी बनेगा वो। नंबर 7। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। ओके, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का गठन और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। अब मैं पढ़ लेती हूँ जरा संशोधन। नंबर 1। क्लाउज 4 was clause 4 inserted by the Constitution 38 Amendment Act 1975 as to retrospectively and omitted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 as 16 WEF 20/6 1979. Number 2. Now 30 wide the Supreme Court number of judges Amendment Act 2008 Act 2008 11 of 2009. Number 3rd inserted by the Constitution 15th Amendment Act 1963 S2.
मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ उसको। नंबर 1, संविधान 38वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 2 द्वारा भूतलक्षी रूप से खंड 4 अंतः स्थापित किया गया और संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 16 द्वारा 20/6/1979 से उसका लोप किया गया। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 2008-2009 का 11 की धारा 2 के अनुसार अब यह संख्या 30 है। अब संख्या ये 30 है, न्यायाधीशों की संख्या। किसमें? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नंबर 3, संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित। तो दोस्तों ये मैंने पढ़ा है आज अनुच्छेद 124। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 125, सैलरीज ETC ऑफ जजेस, सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस, यानी न्यायाधीशों का वेतन के बारे में कल मैं बात करूंगी। और 126, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस और कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में इन 2 अनुच्छेदों को पढ़ूंगी, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 126 के बारे में। तो आज बस इतना ही। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर, कमेंट, लाइक। तो तब तक के लिए नमस्कार।